Okay. So first of all, আমরা আসছি categories of routing, মানে dynamic routing. How many types of dynamic routing we have? Basically, two types of not two types, three types of dynamic routings are there. One is distance vector, another is link state, another is hybrid. But hybrid basically is a different category. মানে একটা হচ্ছে ডিস্টেন্স ভেক্টর, ডাইনামিক রাউটিং যদি আমরা বলি, তাহলে ডাইনামিক রাউটিং কত ধরনের হয় না, বেসিক্যালি তিন ধরনের। কিন্তু আমরা যেটা ফোকাস করি সেটা হচ্ছে ডিস্টেন্স ভেক্টর আর লিঙ্ক স্টেট। কারণ হাইব্রিড মানেই বুঝতে পারছো যে হাইব্রিড ইজ a combination of distance vector and link state. So that is why it is a separate type of distance vector. Dynamic routing. So what is the meaning of distance vector? I am coming to the PDF, then it will certainly be clear to you. Distance vector routing protocol, link state and hybrid dynamic routing protocol. Now what is distance vector? Distance vector বলতে আমরা কি বুঝি? এখানে দুটো কথা আছে, two words are there. One is distance, another is the vector. So distance means it is how long, কত দূর আমরা এরকম বলি, ডিস্টেন্স বলতে আমরা সেটাই বুঝি জেনারেলি। and what is vector? Vector মানে হচ্ছে in which direction. Suppose Shahid আছে আর আমি আছি, so I am trying to send a data to Shahid, but in between me and Shahid multiple routes are there. So first I have to judge, if I send the data from me to Shahid, if 4 paths are there, parallel paths, how many routers I have to cross to send the data to Shahid, and in which direction? So when how many routers we have, that is the distance, and in which direction, it is the vector. তার মানে আমি একটা ডেটা শাহিদকে পাঠাচ্ছি, আমার সঙ্গে শাহিদের মাঝখানে 4 রুটস আছে, 4টে রুট আছে, আমি 4টে রুটে ডেটা পাঠাতে পারি। কিন্তু ডিস্টেন্স ভেক্টর এটা দেখবে যে আমার 4টে রুটের যদি আমি ডেটা পাঠাই, আমায় সব থেকে কম রাউটার টপকাতে হচ্ছে কোন রুটে, মিনিমাম রাউটার্স আই হ্যাভ টু ক্রস ইন হুইচ রুট, দ্যাট ইজ দ্য ফেভারেবল রুট। তাহলে কি করবে, ও মিনিমাম রাউটারটাকে কাউন্ট করবে। ধরো আমার 4টে রুট আছে, শাহিদের কাছে আমি ডেটাটা পাঠাচ্ছি, 4 রুটস আই হ্যাভ। একটা রুটে in between me and Shahid 5 routers are there, 4 routers are there, 3 routers are there, and 2 routers are there. So automatically if we choose the distance vector, so by the algorithm of the distance vector it will choose then the fourth one, means যেখানে আমার রাউটারটা নাম্বার অফ রাউটার ক্রস করতে হচ্ছে কম, তাহলে কোন ডিরেকশনে, দ্য ফোর্থ রুট, তার মানে ডিরেকশনটা হচ্ছে এইটা, কাউন্ট হচ্ছে ওটা। সো দ্যাট ইজ ওয়াই দ্য নেম ইজ ডিস্টেন্স। বলো বলো স্যার, একজন এই রিকোয়েস্ট পাঠাচ্ছে, অ্যাকসেপ্ট করুন রাজুস। আচ্ছা, তাহলে জিনিসটা কি বলছে ভালো করে দেখো। এই যে পিকচারটা, আমার R1 আছে, R2 আছে, আমার R1 থেকে ডেটাটা R2 এর দিকে যাচ্ছে। So that is the vector, means the direction in which direction I am trying to send my data to Shahid, that is the vector. And distance means how many routers I have to cross in this particular direction, কতগুলো রাউটার আমায় ক্রস করতে হচ্ছে। ইফ এ সিঙ্গেল রুট ইজ দেয়ার ইজ নো চয়েস। আমার সঙ্গে যদি শাহিদের একটাই রুটে কমিউনিকেশনটা হয়, তাহলে এখানে তো আমার চুজ করা নেই, ডিরেকশনটা ওটা ডাইরেকশন একই হবে, রুটও একই হবে। বাট ইফ আমার সঙ্গে শাহিদের মধ্যে যদি মোর দ্যান ওয়ান রুটস থাকে, দেন দ্য কোশ্চেন কামস, কোন রুটটা আমার পক্ষে ইজি।
দ্য অ্যাকর্ডিং টু ডিস্টেন্স ভেক্টর রাউটিং প্রোটোকল আমাকে দেখতে হবে কত মিনিমাম রাউটার আমাকে ক্রস করতে হচ্ছে ডেটাটা সেন্ড করতে, কোন রুটটায়, তাহলে এটা হলো ডিস্টেন্স, আর সেটা কোন ডিরেকশনে, দ্যাট ইজ দ্য ভেক্টর। সো দ্যাট ইজ, this is known as distance vector routing protocol. What is written? Distance identifies how far it is to the destination network and is based on a metric such as the hop count, cost, bandwidth, delay and more. এত কিছু জিনিসকে আমাকে কনসিডার করতে হচ্ছে। ইফ রাউটিং ইনফরমেশন প্রোটোকল রিপ, যেটা আমি গত সপ্তাহের আগের সপ্তাহে একদিন ল্যাবে দেখালাম, ইফ রিপ ইজ কনসার্ন, রিপ কিন্তু দেখে কি আমাকে কতগুলো রাউটার ক্রস করতে হচ্ছে, সেখানে আদার্স যে কস্ট, ব্যান্ডউইথ, ডিলে আর আদার্স আর নেগলিজেবল, ওটা কনসিডার করে না রিপ যেটা। বাট অ্যাজ এ হোল তুমি যদি মনে করো যে ডিস্টেন্স ভেক্টর রাউটিং প্রোটোকল যখন কাজ করবে তখন কিভাবে কাজটা করবে, इन विच वे। अगर डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल को कम करना है तो कौन सा इसका डिस्टेंस का पैरामीटर क्या होगा? डिस्टेंस का पैरामीटर होगा नंबर 1 पैरामीटर, कितना राउटर को हमको क्रॉस करना है फ्रॉम सेंडिंग फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, दैट इज 1. Second is the cost, I told you in the last class. What should be the bandwidth? How much time lagging is there, means the delay, and other some parameters are there. But if we consider the example of distance vector, suppose RIP, routing information protocol, that is a protocol which we already configured. RIP is concerned, then RIP only checks how many routers I have to cross, that's all. But as a whole, the distance vector routing protocol, the distance means others parameters also, it includes other parameters also. মানে কি করছে, ও হফ কাউন্টও করছে, কস্টও করছে, ব্যান্ডউইথও করছে, ডিলে করছে, সব কটাকে নিয়ে ও কস্ট ক্যালকুলেশন করে দেখছে আমার ডিস্টেন্স কোনটায় অ্যাজ এ হোল কম হচ্ছে। এক নম্বর, দিস ইজ দ্য ফার্স্ট পয়েন্ট। দ্য সেকেন্ড পয়েন্ট হুইচ স্পেসিফাইজ the direction of the next of router or exit interface to reach the direction. আমি আমার কাছ থেকে শাহিদকে আমি 4টে রুটে ডেটা পাঠাচ্ছি, তাহলে কোন রুটটা আমার বেস্ট কি করে ডিসিশন হবে, that will be decided first from the first point, means the distance. Next decisionটা হবে the direction, which is the direction, in which direction I should send the traffic. So that is why the name is distance vector. 2 words are there. Is it clear or not? First tell me. Is it clear or not? এটা কি বোঝা গেছে না বোঝা যায়নি? Yes sir. Yes, sir. Shahid, is it clear? हाँ sir. Okay. বিভু বুঝেছো? হ্যাঁ স্যার। সুদীপ্ত, সায়ন, এরা বুঝতে পেরেছো? রোহিত আর একবার বলে দিতে বলছি স্যার। একবার বলুন। আচ্ছা, আমরা বেসিক্যালি ডাইনামিক রাউটিং প্রোটোকল বলতে আমরা বুঝি ডাইনামিক্যালি আমার আপডেটটা হচ্ছে যেটা আমরা আগের দিন ডিসকাস করেছি। এবার আমাদের প্রশ্নটা হচ্ছে যে এই ডাইনামিক রাউটিংটা কত ধরনের হয়ে থাকে, কি কি টাইপের হয়ে থাকে। প্রধানতম তুমি দেখবে ম্যাক্সিমাম জায়গাতে এটা বলে যে ডাইনামিক রাউটিং 2 ধরনের। বেসিক্যালি তুমি যদি সিসকোকে ফলো করো তাহলে কিন্তু সিসকো কিন্তু বলবে 3 ধরনের। আমি কেন পরে বলছি। প্রথম হচ্ছে ডিস্টেন্স ভেক্টর রাউটিং প্রোটোকল, একটা ক্যাটাগরি। সেকেন্ড ক্যাটাগরিটা হচ্ছে লিঙ্ক স্টেট রাউটিং প্রোটোকল। আর এই দুটোকে বাদ দিয়ে যেটা থার্ড থাকছে দ্যাট ইজ এ হাইব্রিড প্রোটোকল। হাইব্রিড মানে হচ্ছে মিক্সচার, মানে ডিস্টেন্স ভেক্টর আর লিঙ্ক স্টেট দুটোর কিছু কিছু ফিচার নিয়ে তৈরি হয়েছে এই থার্ড ওয়ানটা, হাইব্রিড। তাই জন্য কি হয়, অনেক জায়গাতে হাইব্রিডকে বাইরে রাখে, কিন্তু সিসকো 3টেকেই কিন্তু কনসিডার করে যে না এটা আমার ডিস্টেন্স ভেক্টরেরই এক্সাম্পল। অতএব যদি তোমাকে কোথাও জিজ্ঞেস করে যে ডাইনামিক রাউটিং প্রোটোকল কতগুলো টাইপের, অলওয়েজ বলবে আনসারটা দেবে 3টে ক্যাটাগরি, ডিস্টেন্স ভেক্টর, লিঙ্ক স্টেট, হাইব্রিড, এই 3টে। এখন এই প্রশ্নটা হচ্ছে যে ডিস্টেন্স ভেক্টর বলতে আমরা কি বুঝি।
না ডিস্টেন্স ভেক্টর বলতে আমরা কি বুঝবো? না ডিস্টেন্স ভেক্টর বলতে বুঝবো এখানে দুটো ওয়ার্ড। কি দুটো ওয়ার্ড? না একটা হচ্ছে ডিস্টেন্স আর একটা হচ্ছে ভেক্টর, মানে একটা দূরত্ব, একটা হচ্ছে ডিরেকশন। তাহলে দূরত্ব বলতে এখানে তো কিলোমিটারে আমরা মাপবো না, তাহলে কিভাবে মাপবো? না আমি আছি আর শাহিদ আছে, আমি শাহিদকে একটা ডেটা পাঠাচ্ছি, দেখা যাচ্ছে যে শাহিদের সঙ্গে আমার একটাই রুটে কানেকশন আছে, তার ফলে দেয়ার ইজ নো চয়েস, আমার কোনো চয়েস করার জায়গা নেই, আমার তো একটাই রাস্তা, অতএব আমাকে যেখান দিয়ে হোক ওখান দিয়ে পাঠাতে হবে ডেটাটাকে। বাট ইফ in between me and Shahid there are 4 routes, তখনই কিন্তু সমস্যাটা আসছে যে আমি কোন রুটে ডেটাটাকে ফরওয়ার্ড করব। তাহলে আমি কি করব? আমার ডিস্টেন্সটা আমি কিভাবে হিসেব করব? না কতখানি দূরে। প্রথম হচ্ছে আমি যখন ডেটাটা আমার কাছ থেকে শাহিদকে ফরওয়ার্ড করছি, ডেটাটা ট্রাভেল করছে একটা রুটে, কোন রুটটায় নাম্বার অফ রাউটার্স কম, এটা 1 নম্বর। যে রুটে নাম্বার অফ রাউটার কম হবে মানে আমাকে টপকাতে কম হবে, সিম্পল ইউ থিঙ্ক তুমি একটা রাস্তা দিয়ে যাচ্ছ, একটা জায়গা থেকে একটা জায়গায় যাচ্ছ, 3টে প্যারালালি রাস্তা আছে, একটায় 5টা বাম্পার, একটায় 3টে বাম্পার, একটায় একটা বাম্পার, তোমার অটোমেটিক্যালি চয়েস হবে ওই একটা বাম্পারকে টপকানো। এবার 5টা বাম্পার আমি টপকাবো না, আমি একটা বাম্পার দিয়ে টপকে আমি চলে যাব। তো সেম থিং ইজ হ্যাপনিং হিয়ার। আমার 4টে রুট আছে, সাপোজ আমি সাইডকে ডেটাটা পাঠাবো, আমার আর শাহিদের মাঝখানে 5টা রাউটার আছে একটা রুটে, একটা 4টে আছে, একটা 3টে আছে, ধরো 3টে রুটে যাচ্ছে। তাহলে অটোমেটিক্যালি ডিস্টেন্স ভেক্টর রাউটিং প্রোটোকলের চয়েসটা হবে ফার্স্ট কোন রুটটায় আমার সব থেকে কম রাউটার ক্রস করতে হচ্ছে, টপকাতে হচ্ছে, মানে বাধাটাকে ক্রস করতে হচ্ছে, 1 নম্বর। দ্বিতীয় চয়েস হবে কি? কস্ট। আমি যে ডেটাটা কোন রুট, এই এতগুলো রুটের কোন রুটটায় আমার কস্ট কম হবে। ব্যান্ডউইথ হচ্ছে নেক্সট, যে কোনটায় কম হবে। এবং আমি যে ডেটাটাকে আমার কাছ থেকে শাহিদকে পাঠাচ্ছি, টাইম ডিলেটা কতখানি হচ্ছে। টাইম ডিলে মিনস আমি পাঠাচ্ছি, ও রিসিভ করছে। সাপোজ আমার এখান থেকে ডেটাটা শাহিদকে ফরওয়ার্ড করছি, একটা রুটে লাগছে 10 সেকেন্ড, একটায় লাগছে 9 সেকেন্ড, একটায় লাগছে 8 সেকেন্ড। সো অটোমেটিক্যালি আই মাস্ট প্রেফার দ্য 8 সেকেন্ড রুট। তাহলে এতগুলো প্যারামিটারের কম্বিনেশনে তৈরি হচ্ছে ডিস্টেন্স। প্রথম, আমায় কতগুলো রাউটার ক্রস করতে হচ্ছে। সেকেন্ড, আমার কস্ট কোনটায় কম। থার্ড, দ্য ব্যান্ডউইথ, অ্যান্ড ফোর্থ ইজ দ্য ডিলে। তাহলে এতগুলোকে আমি যদি কিউমুলেটিভ মানে যোগ করি, করে যে রেজাল্টটা আসবে, যে ভ্যালুটা কম হবে, দ্যাট শুড বি মাই প্রেফার্ড ডিরেকশন। তাহলে ওটা হচ্ছে ডিস্টেন্স ভেক্টর, ওটা হচ্ছে ডিস্টেন্স। নাও হোয়াট ইজ ভেক্টর? ভেক্টর মানে হচ্ছে, এটা ম্যাথমেটিক্স আমরা মনে করে দেখো, স্কেলার রাশি, ভেক্টর রাশি আমরা ক্লাস 10-এ করেছিলাম। সো ভেক্টর মিনস দ্য ডিরেকশন, যে আমি ভ্যালুটা কম পেলাম, তার মানে আমাকে এই ডিরেকশনে পাঠাতে হবে। তার মানে এখানে ভ্যালু জেনারেট করলো হুইচ ইজ ডিস্টেন্স, আর ডিরেকশন জেনারেট করলো হুইচ ইজ দ্য ভেক্টর। So that is why the combination of this protocol, the name of the combination is called distance vector routing protocol. Is it clear or not? বোঝা গেল না গেল না? Yes, রোহিত sir. বোঝা গেছে? হ্যাঁ স্যার, বুঝতে পেরেছি। Yes, sir. ওকে, তাহলে এটা হচ্ছে ডিস্টেন্স ভেক্টর। এখানে যে পিকচারটা দেখানো হয়েছে, দিস পিকচার depicts that you have a single route from R1 to R2, then there is no choice. তোমার কাছে একটাই রাস্তা, তোমাকে একটা রাস্তাতেই যেতে হবে, তুমি অন্য কোনো রাস্তাতে পারবে না, পরিষ্কার কথা। আমি একটা ছোট্ট এক্সাম্পল দিচ্ছি। সাপোজ তুমি এখান থেকে দিল্লি যাচ্ছ, তো দিল্লি যাওয়ার তো অনেক রুট আছে, শিয়ালদা দিয়েও যাওয়া যাচ্ছে, হাওড়া দিয়েও যাওয়া যাচ্ছে, দিল্লি রাজধানীও যাচ্ছে, হাওড়া রাজধানীও যাচ্ছে। তাহলে তোমায় দেখতে হবে দিল্লি রাজধানী আর হাওড়া রাজধানীর মধ্যে কোনটা কম সংখ্যক স্টেশনে দাঁড়ায় এবং কোনটা আগে পৌঁছচ্ছে, সেই রুটটাকে তুমি প্রেফার করলে, দ্যাট ইজ দ্য ডিস্টেন্স ভেক্টর। বাট তুমি সাপোজ, আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছি, একটা এমন একটা রুট বলছি যে রুটটা সিঙ্গেল রুট। যেমন ধরো এই যে কল্যাণী আছে, কল্যাণী আমাদের যে স্টেশন, কল্যাণী থেকে একটা রুট কল্যাণী সীমান্ত অব্দি ঘুরে গেছে, মেন লাইনটা চলে যাচ্ছে কৃষ্ণনগর, একটা বাঁদিকে লাইন, ওটা সিঙ্গেল লাইন। তাহলে তোমাকে যদি কল্যাণী থেকে কল্যাণী সীমান্ত তোমাকে যেতে হয়, ওই রুটেই তোমায় যেতে হবে, আসতে হবে, তোমার আদার্স কোনো রুটে চয়েস নেই, তুমি যেতে পারবে না। But if you want to reach Chandanagar, then you have multiple routes.
তুমি হাওড়া দিয়ে যেতে পারো, তুমি গঙ্গা ক্রস করে দিয়ে যেতে পারো, তুমি সোদপুর দিয়ে গঙ্গা ক্রস করে ওই লাইন দিয়ে যেতে পারো, তুমি ব্যারাকপুর দিয়ে ঘুরে যেতে পারো, মাল্টিপল রুটস আর দেয়ার। দেন ইউ হ্যাভ টু থিঙ্ক যে কোনটায় আমার কস্ট কম লাগছে, কোনটায় আমার নাম্বার অফ তোমার ফার্স্ট আমি যাব, টাইম ডিলেটা আবার কম হবে, এইগুলো তোমার আসছে। কিন্তু ইফ ইউ হ্যাভ এ সিঙ্গেল রুট দেন দেয়ার ইজ নো চয়েস, তোমার কাছে কোনো চয়েস নেই। ওকে, কারোর কোনো সমস্যা থাকলে বলো, নয়তো আমি নেক্সট টাই চলে যাচ্ছি। अजीत का प्रॉब्लम। হ্যাঁ বলো। अजीत का। অজিত বলছে স্যার হিন্দিতে আর নালে ইংলিশে আচ্ছা, example অজিত কি দিতে আজকে পারে। প্রেজেন্ট? হ্যাঁ স্যার। अजीत, तुम्हारा अटेंडेंस परसेंटेज इतना कम क्यों है? मेरे पास कल रिपोर्ट आया। सर ये कुछ प्रॉब्लम हुआ था ना, तो इसीलिए क्लास अच्छा। नहीं करवाया। अच्छा ठीक है, लेकिन तुम एग्जाम में क्यों नहीं बैठा? मैंने तुम्हारे लिए लिंक ओपन कर दिया था। सर मेरे मेल पे एक भी नहीं आया। अरे भाई, मेल पे नहीं आया तो क्या हुआ, मैं तो बाद में जाके तो भेज दिया था, तो तुमको वहां तो मतलब अटेंड करना चाहिए था। बहुत ट्राई किया, तो टाइम भी जा चुका था, इसलिए सर नहीं। ओके ठीक है, हाँ बोलो कहाँ पर प्रॉब्लम है बताओ। डिस्टेंस सर वेक्टर से तुम। ये समझ गया सर, जो आगे का है वो अच्छा थोड़ा ठीक है। Next is the link state. Just see, here is also 2 points are there, link and the state. In case of links, oh, another thing is that sorry, I just forgot it. The thing is that, so if any changes occurred in a particular route, समझ लो कोई एक नेटवर्क है तुम्हारा, ये डिस्टेंस वेक्टर के हिसाब से हम बोल रहे हैं कि वहां पर कोई नेटवर्क में एक चेंज आया, तो यहां पर क्या होगा? It is a dynamic routing protocol, so automatically there is no need to you move from one router to another router. There is no need, because that it is happening in static routing. But in dynamic routing it is not possible. If there is any change, automatically that change will replicate to other routers automatically. So that is why it is called dynamic. Now the point is there, that is, अगर तुम्हारा कोई भी नेटवर्क में कोई एक प्रॉब्लम हुआ, एक चेंज हुआ, समझ लो, तो यहां पर क्या होता है, पूरा राउटिंग टेबल के अंदर उसका वो चेंज रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो अपडेट के हिसाब से वो पूरा जो राउटिंग टेबल है वो हर एक राउटर के पास वो अपडेट के तौर से चला जाएगा। पूरा राउटिंग टेबल, समझ लो एक चेंज हुआ लेकिन उसके लिए पूरा राउटिंग टेबल चला जाएगा। दैट इज वन नेगेटिव पॉइंट ऑफ डिस्टेंस वेक्टर, क्योंकि यहां पर कोई भी एक चेंज के लिए पूरा राउटिंग टेबल जाएगा, वो चेंज नहीं जाएगा। तो पूरा राउटिंग टेबल जाने के मतलब क्या होता है, थोड़ा बहुत बैंडविड्थ कंजम्पशन ज्यादा हो जाता है। लिंक स्टेट में वही नहीं होता है। दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू दिस कि डिस्टेंस वेक्टर में क्या होता है, कोई भी एक नेटवर्क में स्लाइट चेंज हुआ है या सिंगल चेंज हुआ है, इसके लिए पूरा जो उस नेटवर्क के लिए जो उस राउटर का जो पूरा राउटिंग टेबल वो पूरा का पूरा रेप्लिकेट होता है। मतलब उसका जरूरत नहीं है लेकिन वो पूरा रेप्लिकेट हो जाता है। तो दैट इज वन नेगेटिव पॉइंट, बिकॉज इट मे कंज्यूम मच मोर बैंडविड्थ। মানে আমার একটা চেঞ্জ হয়ে যাওয়ার পর কি হচ্ছে, ওই চেঞ্জটা আমার শুধু চেঞ্জটা গেল একটা কথা, কিন্তু চেঞ্জটা যাচ্ছে না, তার জায়গায় পুরো রাউটিং টেবিলটাই ফরওয়ার্ড হচ্ছে। তার মানে বুঝতেই পারছো একটা চেঞ্জ যাওয়া, একটা পুরো রাউটিং টেবিল যাওয়া, ব্যান্ডউইথ কনজাম্পশন অনেক বেড়ে যাচ্ছে। ইট টেকস হাই ব্যান্ডউইথ। ইউ হ্যাভ এ সিঙ্গেল চেঞ্জ, বাট instead of a single that change, you just router forwards entire routing table from one router to another router as an update, as a form of update. It sends, but that is not happening in link state. In link state what is happening, जो भी तुम्हारा भाई चेंज हुआ वो बताओ, वो पूरा राउटिंग टेबल हमको नहीं चाहिए, तो इसमें बैंडविड्थ कम लगता है। क्यों? इसीलिए इसका नाम है लिंक स्टेट। देखो, जस्ट ए राउटर कॉन्फ़िगर्ड विथ ए लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल कैन क्रिएट ए कंप्लीट व्यू और द टोपोलॉजी ऑफ द नेटवर्क। व्यू मतलब टोपोलॉजी, और ये जो हम बनाते हैं
कि एक सर्वर है, दूसरा यहाँ पर, ये इसको कहते हैं टोपोलॉजी। तुमको टोपोलॉजी तो बनाना पड़ेगा कि ये राउटर है, ये एक राउटर है, ये एक राउटर है, इसके साथ ये नेटवर्क, जो तुम डिजाइन बनाया, दैट इज कॉल्ड द टोपोलॉजी, नेटवर्क टोपोलॉजी। So what is happening here? It can create a complete view or topology of the network by gathering the information from all the other routers. Obviously, सब तुम्हारे पास जो राउटर का इंफॉर्मेशन है सबके पास अपडेट होना चाहिए, तो सब पूरा टोपोलॉजी का इंफॉर्मेशन तुम्हारे राउटर के पास भी होना चाहिए, मेरे राउटर के पास भी होना चाहिए। That is why in the last class I told you that is called the convergence. To continue our analogy of signposts using the link state protocol is like having a complete map of the network topology. The signposts along the way from source to destination are not necessary because all link state routers are using the identical map. A link state actually এই পার্টটা that is not so important, মানে এই যে পার্টটা আমি প্যারাটা পড়ছি, a link state router uses the link state information to create a topology map and to select the best path to all the destination network. Means link state means जो तुम्हारा चेंज हुआ। स्टेटेर माने की, स्टेट আমরা বলি না যে সলিড স্টেট, লিকুইড স্টেট, means অবস্থা, सिचुएशन। So state means यहाँ पर लिंक स्टेट के मतलब दो वर्ड, लिंक स्टेट, स्टेट मतलब जो स्टेट तुम्हारा चेंज हुआ, अब तुम कौन सा स्टेट में हो। समझ लो तुम्हारा एक नेटवर्क है, उसका जो नेटवर्क चल रहा था वो था 172.16.0.0। अब जाके उस नेटवर्क को तुम चेंज कर दिया, उसके जगह तुम कर दिया 10.0.0, तो स्टेट चेंज हो गया, वो पर्टिकुलर नेटवर्क का वो स्टेट चेंज हो गया। लेकिन वो जो चेंज हुआ उसका इंफॉर्मेशन तो हर एक राउटर के पास होना चाहिए अपडेट के हिसाब से, उसके पास तो भेजना चाहिए। तो लिंक स्टेट में क्या हो गया, वो सिर्फ जो लिंक में चेंज हुआ, वो स्टेट, जो स्टेट का चेंज हुआ, वो लिंक का जो स्टेट चेंज हुआ, सिर्फ वही इंफॉर्मेशन रेप्लिकेट हो जाएगा हर एक राउटर के पास। पूरा राउटिंग टेबल जाने का कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल में बैंडविड्थ कंजम्पशन कम होता है, क्योंकि वो पूरा राउटिंग टेबल के जगह वो भेज दिया है, जो चेंज हुआ भाई वो लो, पूरा का कोई जरूरत नहीं है। पूरा टेबल लेके हम क्या करेंगे, बाकी इंफॉर्मेशन तो मेरे पास भी है, जो चेंज हुआ वो बताओ भाई। মানে ও কি করছে, ডিসটেন্স ভেক্টরে যেটা হচ্ছিল সেখানে হচ্ছে পুরো একটা চেঞ্জ হোক, দুটো চেঞ্জ হোক, যাই চেঞ্জ হোক, পুরো রাউটিং টেবিলটাকে ফরওয়ার্ড করে দিচ্ছে। একটা পুরো রাউটিং টেবিল যখন যাচ্ছে তার ব্যান্ডউইথ কনজাম্পশনটা অনেক বেশি হচ্ছে। जब तुम्हारा पूरा राउटिंग टेबल फुल नेटवर्क के थ्रू से जाएगा तो उसके अंदर तो बहुत सारे इंफॉर्मेशन है, तो इसीलिए सेम इंफॉर्मेशन जाएगा, तो इसीलिए बैंडविड्थ कंजम्पशन भी ज्यादा लगेगा। बट लिंक स्टेट में कहा गया कि भाई जो स्टेट हुआ, जो लिंक का जो स्टेट चेंज हुआ, सिर्फ वही इंफॉर्मेशन हमको भेज दो, बाकी तो सब तुम्हारे पास जो भी है मेरे पास भी वही है, वो भेजना नहीं चाहिए। So that is why in link state routing this protocol the bandwidth consumption is lower than the distance vector routing protocol. Am I clear? अजित समझ में आया? सजीद? Yes sir. Okay, বাকিরা বুঝেছো ব্যাপারটা? Is it clear or not? আমি বাকিদের বলছি। হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার, বুঝতে Okay. পেরেছি। Yes, sir. এইখানে পিকচারটা দিয়ে দিয়েছে, যে লিংক, এই যে লিংক আপডেট फ्रॉम R1। এইখানে একটা নেটওয়ার্ক কোনো কারণে বন্ধ হয়ে গেছে, सपोज यहाँ पर जो नेटवर्क है वो किसी लिए डिस्कनेक्टेड हुआ या बंद हो गया, ये लिंक स्टेट अपडेट, जस्ट ये अपडेट, सिर्फ ये अपडेट चला जा रहा है सबके पास, पूरा राउटिंग टेबल नहीं, सिर्फ जो अपडेट है वो जाएगा, पर्टिकुलर जो अपडेट है। अपडेट मतलब जो लिंक का जो पर्टिकुलर लिंक का जो स्टेट का चेंज हुआ वो फॉरवर्ड हो जाएगा। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड लिंक स्टेट। नेक्स्ट इट इज द हाइब्रिड। बेसिकली हाइब्रिड मीन्स इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिस्टेंस वेक्टर एंड द लिंक स्टेट। A hybrid routing protocol has the advantage of both.
distance vector and link state routing protocols and merge them into a new protocol. मतलब उसका कुछ पैरामीटर्स, उसका कुछ तुम्हारा मेरिट्स व पॉइंट्स, फीचर्स, डिस्टेंस वेक्टर का कुछ, लिंक स्टेट का फीचर्स, ये दोनों लेके नया एक बनाया राउटिंग प्रोटोकॉल, डिस्टेंस डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल, जिसको कहता है हाइब्रिड. क्यों हाइब्रिड कहा जाता है? इसीलिए कि ये दोनों को डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल का कुछ फीचर को ये मिला के बनता है, इसीलिए. So typically hybrid routing protocols are based on distance vector protocol but contain many of the features and advantages of link state. जैसे कि एग्जांपल के तौर से यहाँ पर बोला गया कि EIGRP, Enhanced Interior Gateway Routing Protocol, that is the hybrid routing protocol. Now I am coming to the presentation. The distance vector routing approaches determine the direction and the distance to any link in the internet network. The link state approach, also called the shortest path first, recreates the exact topology of the entire network. এখানে কি বলছে? রিক্রিয়েটস মানে হচ্ছে আমার যে এন্টায়ার टोपोलॉजी नेटवर्क है, कि कौन सा नेटवर्क के पास के कौन सा लिंक है, सब कुछ, एवरीथिंग एज ए कंप्लीट, उसको कहता है. उस नेटवर्क का टोपोलॉजी समझ लो तुम्हारा एक ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन का डिफरेंट ब्रांचेस है, उसके अंदर बहुत सारे लिंक है, कनेक्टिविटी है. तो तुम्हारे पास एक चार्ट होना चाहिए, या तुमको कहा गया कि भाई तुम्हारा जो नेटवर्क चल रहा है ना, उसका पूरा के पूरा जो ये टोपोलॉजी डायग्राम हमको दे दो, तो जिससे हमको देखकर पता चलेगा कि भाई अच्छा मेरे राउटर के साथ वो राउटर का कनेक्टिविटी है, इसके राउटर से इसे, पूरा टेबल, तुम्हारा जो पूरा नेटवर्क चल रहा है उसका कंप्लीट टेबल ये हर एक राउटर के पास होगा. इसीलिए अगर कोई भी लिंक में कोई चेंज आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली दैट चेंज विल अपडेट टू द अदर राउटर्स, क्योंकि सबके पास तो वो चेंज है. समझ लो अजीत है, सजीद है, यहाँ पर सोमाल्लो है, सब है, मैं हूं, तो हमारे लोगों का एक नेटवर्क चल रहा है. मेरे पास भी जो पिक्चर है टोपोलॉजी का, तुम्हारे पास भी है सब कुछ. तो रोहित ने कहा सर मेरा ये जो नेटवर्क है ना, उस लिंक के थोड़ा बहुत चेंज आया, वो अपडेट हम लोगों को भेज दिया. हम लोग क्या किया, मेरे पास पूरा टोपोलॉजी है, तुम्हारे पास भी है, तुम जाके उस टोपोलॉजी में जो चेंज हुआ उसको जाके एडिट कर दिया. सो ऑटोमेटिकली दैट टोपोलॉजी विल फॉरवर्ड टू अदर्स, जो अपडेट चेंज हो गया तो सबके पास सब जो टोपोलॉजी का इंफॉर्मेशन है वो अपडेट हो जाएगा. तो ये टोपोलॉजी के लिए एक टोपोलॉजी डेटाबेस होता है लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल में, तो हम बाद में आएंगे वो सब डिटेल्स. सो दैट इज द लिंक स्टेट एंड दैट इज द हाइब्रिड. ओके, जस्ट देख लो डिस्टेंस वेक्टर में क्या होता है. पास द पीरियडिक कॉपीज ऑफ ए राउटिंग टेबल टू नेबर राउटर्स एंड एक्यूमुलेट डिस्टेंस वेक्टर्स. जितना राउटर है तुम्हारे पास ABCD, सबके पास कोई ना कोई चेंज होगा तो राउटिंग टेबल हर एक के पास चला जाएगा, सबके पास जाएगा. इसीलिए यहाँ पर मेंशन है राउटिंग टेबल, कोई एक चेंज नहीं, पूरा का पूरा राउटिंग टेबल सबके पास जाएगा. सो दैट दिस पिक्चर डिपिक्ट्स दैट. इज इट क्लियर? यस सर. नेक्स्ट, सर. हाँ यहाँ पर देखो डिस्टेंस कहां पर, ये 192.168.1.0 नेटवर्क है, 5 है, वहां पर 70 है. तो कैसे ये ट्रैवल करेगा, फ्लो ऑफ राउटिंग इंफॉर्मेशन कैसे होगा? कि राउटिंग टेबल कंटेन्स द एड्रेसेस ऑफ द डेस्टिनेशंस एंड द डिस्टेंस ऑफ द वे टू दिस डिस्टेंस. राउटर बी को अगर तुम समझ लो कि ये एक ये मेन है, तो राउटर बी के साथ अगर राउटर सी में जाएगा तो एक हॉप क्रॉस करना पड़ेगा, अगर राउटर डी में जाना होगा तो 2 हॉप क्रॉस करना पड़ेगा, और राउटर ए में जाएगा तो 1 हॉप क्रॉस करना पड़ेगा. ये है कितना हॉप क्रॉस किया, यह है डिस्टेंस. और कौन सा डायरेक्शन में, ये जो ग्रीन कलर का है यह है कौन सा डायरेक्शन में वो भेजेंगे. दैट इज व्हाई द कंप्लीट थिंग इज कॉल्ड डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल. दैट इज द राउटिंग टेबल ग्राफिक. यहाँ पर राउटर है,
यहाँ पर बहुत सारे चीज है, इंफॉर्मेशन है। एक एग्जिट इंटरफेस 2 है, E0 एंड E1। E0 के पास एक नेटवर्क चल रहा है और E1 के साथ एक नेटवर्क चल रहा है। ये देख लो। तो इसके अंदर जो राउटिंग टेबल है, क्या किया यहाँ पर, डायरेक्टली कनेक्टेड कौन सा रूट है, 3 रूट है डायरेक्टली कनेक्टेड, 192.168.11.0, 12.0 और एक है 20.0। 20.0 मतलब ये जो रूट, जो लिंक का ये रूट, मतलब ये रूट और ये रूट, ये तीनों डायरेक्टली कनेक्टेड है। और 2 बाहर का है जो राउटिंग रीप जो है, रीप के हिसाब से कनेक्टेड है, रीप के थ्रू से कनेक्टेड है। अगर कोई भी टोपोलॉजी का चेंज हो गया, হ্যাঁ বলো। স্যার বলো। স্যার আগেরটাকে আরেকবার তো বলুন, আমি বুঝতে পারিনি। এইখানে যেটা আছে এটা রাউটার আছে, বুঝতে পারছো? এবার এই রাউটারটায় আমার ধরো রিপ দিয়ে আমি কনফিগার করেছি, রিপ প্রোটোকল দিয়ে, রিপ ডিস্টেন্স প্রোটোকলটা যেটা রাউটিং ইনফরমেশন প্রোটোকল দিয়ে। তো রিপ দিয়ে যখন আমি এটা করেছি তখন এই রাউটারের সঙ্গে ডাইরেক্টলি কানেক্টেড কে আছে, রুট, যেটা সরাসরি রাউটারের সঙ্গে কানেক্টেড। দেখো এই রুটটা আছে E0 ইন্টারফেসে, E1 ইন্টারফেসে আছে আর সিরিয়াল 0-তে আছে। তাহলে রাউটিং টেবিলটা যখন এখানে দেখাচ্ছে, এই রাউটারের ভেতরে যে রাউটিং টেবিলটা, ইট শোজ দ্যাট ইট হ্যাজ 3 ডাইরেক্টলি কানেক্টেড রুটস। ওয়ান ইজ থ্রু সিরিয়াল পোর্ট, ওয়ান ইজ থ্रू E0 इथरनेट 0, अनदर इज इथरनेट 1। 3 रूट के थ्रू से कनेक्टेड है। ঠিক আছে, ব্যাপারটা বোঝা গেল? আর হ্যাঁ স্যার বুঝতে পেরেছি। বাকি দুটো রুট কি দেখাচ্ছে, বলছে এই যে বাইরের দিকে যে নেটওয়ার্কটা আছে সেখানে দুটো নেটওয়ার্কের সঙ্গে ও কানেক্টেড, সেটা রিপ প্রোটোকলের থ্রু দিয়ে কানেক্টেড, সেটাইও দেখিয়ে দিয়েছে। তাহলে টোটাল এই রাউটারটা 5টা ইনফরমেশন রাউটিং টেবিলে স্টোর করছে, 5 ইনফরমেশন। 3টে ওর নিজের সেলফ ডাইরেক্টলি কানেক্টেড রুট, আর দুটো হচ্ছে রিপের থ্রু দিয়ে কানেক্টেড, মানে রিমোট যে কানেক্টিভিটি আছে সেটা কোন প্রোটোকল না, এখানে আর লেখা আছে মানে রিপের থ্রু দিয়ে আছে। যদি আই থাকতো তাহলে আইজিআরপি, যদি ডি লেখা থাকতো তাহলে ইআইজিআরপি, আর যদি ও লেখা থাকে তাহলে ওএসপিএফ। সি মানে বলো। সি মানে স্যার সি লেখা আছে যেখানে, সি মানে ডাইরেক্টলি কানেক্টেড। সি মানে ডাইরেক্টলি কানেক্ট, মানে ডাইরেক্টলি মানে হচ্ছে কানেক্টেড আর কি, মানে ডাইরেক্টলি কানেক্টেড মানে ডাইরেক্ট রাউটারের নিজস্ব যে ইন্টারফেস গুলো রয়েছে। এই যে 3টে ইন্টারফেস দেখছো না, এখানে সিরিয়াল আছে, এখানে E0 আছে, এটা E1 আছে, এটা তো রাউটারের নিজস্ব। অর্থাৎ তোমার যদি দুটো হাত আছে, দুটো হাতে তুমি দুটো জিনিস ধরে রাখো, তাহলে হাতটা তো তোমার নিজের ডাইরেক্ট, তোমার নিজের ইন্টারফেস। তার মানে হচ্ছে এই দুটো হাতে যে কানেক্ট আছে, মানে আমার রাউটিং টেবিলে দেখাবে এই ইন্টারফেসটা, আর এই ইন্টারফেসটা হচ্ছে আমার ডাইরেক্টলি কানেক্টেড রুট। Am I clear? হ্যাঁ স্যার বুঝতে পেরেছি। এইখানে দেখাচ্ছে এটা যে কোনো চেঞ্জ যদি হয়, এই যে রাউটার এ সেন্ডস আউট দিস আপডেটেড রাউটিং টেবল। সাপোজ রাউটার এ তে কাছে আছে, প্রসেস টু আপডেট দিস রাউটিং টেবল, টপোলজি চেঞ্জেস কজ দ্য রাউটিং টেবল আপডেট। মানে কি কি কারণে হতে পারে রাউটিং আর এ आरबी के अपडेटটা পাঠাবে, किसके लिए, आरए के थ्रू, आरए के पास से एक अपडेट आरबी के पास जाएगा, तो कोई तो वजह होना चाहिए। कोई भी अपडेट होगा, कोई टोपोलॉजी चेंज हुआ, कोई भी रूट चेंज हुआ, जो भी चेंज होगा वो चेंज अपडेट के तौर से हर एक राउटर के पास, जिस राउटर में चेंज होगा वो अपडेट के तौर से सब राउटर के पास वो भेज देंगे। दैट इज द डिस्टेंस वेक्टर चेंजेस। दिस इज द मेट्रिक जो मैंने अभी बताया, राउटिंग मेट्रिक है ये। इसके साथ जो है एडिशनली, दैट इज इंपॉर्टेंट, हॉफ काउंट। कितना राउटर हम क्रॉस कर रहे हैं एक जगह से दूसरे जगह में डेटा भेजने के लिए, मतलब सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में कितना राउटर क्रॉस हमको करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड द हॉफ काउंट। 1 हॉफ मींस 1 राउटर। if you are asked that there are 3 hops, means how many routers, you bluntly you say 3 routers, means 1 hop is equal to 1 router. If I have to cross 1 hop,
माई हॉफ काउंट इज 1, इसके मतलब एक हॉफ हमको क्रॉस करना पड़ेगा, मतलब एक राउटर को क्रॉस करना पड़ेगा. दैट इज वेरी सिंपल वे. दिस इज द प्रोसेस. मेरे पास राउटर्स है, नेटवर्क है, किसके थ्रू से जा रहा है, कौन सा, ये एक पूरा पिक्चर है. विच इज लोकली कनेक्टेड, किसके पास जा रहा है, ये है क्लॉक, कौन सा टाइम में ये जा रहा है. ये एक पूरा पिक्चर है कंप्लीट. ये कैसे ये काम होता है. ओके सबके पास जो इंफॉर्मेशन चला जा रहा है, ये जो पिक्चर है ना, ये देखो पिक्चर में कौन सा नेटवर्क है, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0. मतलब ये हर एक राउटर 1, राउटर 2, राउटर ए, राउटर बी, राउटर सी, सबके पास इसका इंफॉर्मेशन चला जा रहा है. यहाँ पर देखो सबके पास इंफॉर्मेशन अपडेटेड हो गया. ईच एंड मतलब पूरा लास्ट में ये पहले देखो फर्स्ट सीन, यहाँ पर देखो दो इंफॉर्मेशन है. कौन सा इंफॉर्मेशन है इसके पास, इसके साथ जुड़ा हुआ जो नेटवर्क, ये दो का. थोड़ा बाद 5 मिनट्स के बाद क्या हुआ, ये 4 इंफॉर्मेशन इसके पास चला आया. उसके बाद क्या हुआ, फिर 5 मिनट के बाद और इंफॉर्मेशन चला आया, और 5 मिनट के बाद पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन इस राउटर, हर एक राउटर के अंदर चला आएगा, सबका इंफॉर्मेशन चलाएगा. मतलब ये जो टेबल है देखो 1 2 3 4 5 6 7 इंफॉर्मेशन राउटिंग टेबल क्या है. ये जितना भी यहाँ पर राउटर्स है A B C D, सबके पास ये पूरा का पूरा 7 इंफॉर्मेशन, राउटिंग इंफॉर्मेशन मतलब राउटिंग टेबल में अपडेट हो जाएगा. यही दिखाया कि हर एक बाद एक टाइम के इंटरवल में कितना इंफॉर्मेशन हर एक राउटर के पास, ये कॉमन, ये A B C D के लिए कॉमन, कि 5 मिनट के बाद 5 मिनट का जो इंटरवल है उसका इंटरवल में ये अपडेट चला जा रहा है. जाकर लास्ट में जाके सबके पास सब सातों के साथ इंफॉर्मेशन अपडेट उसके पास उस टेबल के अंदर चलाएगा. सो दैट इज कॉल्ड द कन्वर्जेंस. मतलब सब राउटर के पास सब इंफॉर्मेशन सही तरह से सही हिसाब से चला है. अगर कोई भी राउटिंग समझ लो कि एक नेटवर्क है 6.0, वो चेंज होके 10.0 हो गया, तो ऑटोमेटिकली फिर से ये अपडेट सबके पास चला जाएगा और हर एक राउटिंग टेबल के अंदर ये 10.0 का एंट्री हो जाएगा इंस्टेड ऑफ 6.0. दैट इज द प्रोसेस. Okay, now I am coming to the point of RIP, routing information protocol. Just I am coming. Routing information protocol. Basically, routing information protocol is a distance vector routing protocol. तो मतलब क्या हुआ कि डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल का जो फीचर्स है ये रिप के अंदर वही फीचर्स, सब कुछ फीचर्स होगा. मतलब इन टर्न वी कैन से कि राउटिंग प्रोटोकॉल जो फीचर्स के ऊपर डिपेंड करके बनाया गया वो सब फीचर्स डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल का है, उसी के हिसाब से वो चलेगा. ये जो राउटिंग प्रोटोकॉल है रिप, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल RIP, इस राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल का 2 वर्जन्स है. वन इज वर्जन 1, अनदर इज वर्जन 2. 2 वर्जन्स है और 2 वर्जन्स के थोड़ा बहुत अंतर भी है. सम डिफरेंसेस आर देयर. फर्स्ट ऑफ ऑल, रिप वर्जन 1 जब कोई भी अपडेट को, कोई भी राउटिंग अपडेट को भेजते हैं तो ब्रॉडकास्ट के हिसाब से भेजते हैं. मतलब कौन सा एड्रेस इस्तेमाल करता है, देखो ये 3 255 के हिसाब से राउटिंग इंफॉर्मेशन को शेयर करता है. दिस इज फर्स्ट. लेकिन रिप वर्जन 2 मल्टीकास्ट यूज करता है. कौन सा एड्रेस के थ्रू से,
224009 ब्रॉडकास्ट के जगह राउटिंग मल्टीकास्ट एड्रेस इस्तेमाल करते हैं। दोनों का मील कहां पर है? दोनों का हॉफ काउंट सेम है। वो जो मेट्रिक है हॉफ काउंट सेम, मतलब हॉफ काउंट मतलब 15 मतलब तुम्हारे और मेरे बीच में, समझ लो कि मेरे और शाहिद के बीच में 15 राउटर्स है। 15 राउटर्स क्रॉस हो जाने के बाद ये और फॉरवर्ड नहीं कर पाता है डेटा को, तो इसीलिए इसको कहते हैं, मतलब आफ्टर 15 राउटर इफ देयर इज अनदर राउटर दैट इज कॉल्ड डेस्टिनेशन अनरीचेबल, मतलब वो राउटर के हिसाब से उसका लिमिट ही है 15 राउटर तक वो क्रॉस कर सकेगा, उसके ज्यादा नहीं। ये दोनों प्रोटोकॉल का ही, ভার্সন 1 का भी ভার্সন 2 का भी। মানে আমি যখন একটা ডেটাকে ফরওয়ার্ড করছি তখন যদি আমি রিপ দিয়ে কনফিগার করি, তাহলে রিপে যদি 16 নম্বর রাউটার কেউ চলে আসে, 16th রাউটার যদি চলে আসে, ডেস্টিনেশন আনরিচেবল বা দেখিয়ে দেবে, কারণ ওখানে আর রাউটার ফরওয়ার্ড করতে পারে না। ও ম্যাক্সিমাম ক্যাপাসিটি 15 রাউটার্স ইট ক্যান ক্রসেস, বাট বিয়ন্ড দ্যাট 15 ইট ডাজন্ট ক্রসেস, ইট ডাজন্ট ফরওয়ার্ড দ্য ট্রাফিক, দ্যাট इज अ लिमिटेशन। रीप जो वर्जन 1 है ये क्लासफुल है प्रोटोकॉल। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज क्लासफुल आईपी एड्रेस, व्हाट इज क्लासलेस आईपी एड्रेस? डू यू हैव एनी आइडिया? क्लासफुल आईपी एड्रेस काके बोले और क्लासलेस आईपी एड्रेस काके बोले? এটা তো তোমাদের করার কথা বেসিক নেটওয়ার্কিং এ। স্যার IPv4 এ যেগুলো ডিফল্ট সাবনেট মাস্ক ইউজ করে সেগুলো হচ্ছে ক্লাসফুল আইপি অ্যাড্রেস, আর বাদ বাকিগুলো ক্লাসলেস, আর IPv6 এর পুরোপুরি ক্লাসলেস আইপি অ্যাড্রেস। হ্যাঁ সেটা তো আমি বুঝলাম, তুমি একটা উদাহরণ দিয়ে বলো তো। Your answer is right. যদি স্যার আমি একটা নেটওয়ার্ক ধরি 192.168.0.1 সরি স্যার .0.0, তাহলে স্যার সেটা ক্লাস সি আইপি অ্যাড্রেস হবে। তাহলে স্যার এটা ডিফল্ট সাবনেট মাস্ক ক্লাস সি, যদি তার ডিফল্ট সাবনেট মাস্কটা দেখি স্যার, যদি তার সাবনেট সেটা বলতে হবে। আমি যদি বলি 192.168.0.24, হ্যাঁ স্যার, তাহলে সেটা ডিফল্ট হবে ক্লাস ডিফল্ট। আর ক্লাসলেস, যদি স্যার তাহলে সেটা যদি Classless /27 থাকে সেটা classless IP address means I cannot define the class. Suppose I have 172.16.0.0/18, then it is not a classful IP address. It is a classless because you can't define in which class this network belongs. তুমি যদি 172 কে কনসিডার করো, if you consider 172, then you can say sir it is class B. Okay, your answer is right, but what is the CIDR value? /18. 18 doesn't mean the class B. The class B means /16. Then you must say sir it is a class C. No, if it is a class C, then you must have masking of 24-bit. It is neither not 24-bit, it is neither 24-bit nor it is a 16-bit. In between 16 and 24. So there is no class. You cannot define its class. So that is why it is called classless IP address. And why it is called classful means you can bluntly say that it is blindly you can say that it is class B. Why? The masking is 16, the masking is 24, the masking is 8. So automatically it is a class full IP address. Means you can define a proper definite class of the IP address by looking the mask value. If it is 8, if it is 16, if it is 24, you can blindly say that it belongs to class A, it belongs to class B, it belongs to class C. But if it is /10, /20, /25, you cannot define in which class it belongs. So that is why that is a classless. So REAP version 1 is a classful protocol. Means it uses default masking. It doesn't support classless. Okay. Next, REAP supports up to 6 equal cost paths to a single destination. 6 maximum.
6 इक्वल कॉस्ट पाथ। इक्वल कॉस्ट पाथ मतलब मेरे और सजीद के अंदर जो कनेक्शंस है मैक्सिमम के तौर से 6 पाथ को हम एडमिट करेंगे, लेकिन कहा गया क्या 6 इक्वल कॉस्ट पाथ, मतलब मेरा और सजीद के बीच ये जो 6 रूट होगा हर एक 6 के अंदर ही सेम हॉफ काउंट होगा। तब जाके क्या हुआ, मेरा जो डेटा जाएगा ना वो लोड बैलेंसिंग हो जाएगा, 6 पाथ के थ्रू से वो डिवाइड होके चला जाएगा। মানে আমার বলছে 6টা ইকুয়াল কস্ট পাথ, কথাটা কিন্তু খেয়াল রাখো, 6 ইকুয়াল কস্ট পাথ। মানে আমি যদি ডেটাটাকে পাঠাই সৌমাল্যকে, তাহলে কি হচ্ছে না আমার কাছে ম্যাক্সিমাম 6টা রুটকে আমি সাপোর্ট দিতে পারবো, 6টা রুটে দিয়েই আমি দিতে পারবো, লোড ব্যালেন্স করাতে পারবো, কিন্তু ওই 6টা রুটেরই কস্ট ইকুয়াল হতে হবে, কিন্তু ব্যান্ডউইথ হফ কাউন্ট থেকে এভরিথিং ইকুয়াল হতে হবে। তবে আমি টোটাল ডেটাটা একবার এই পাথ, তারপর 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 এই পাথের থ্রু দিয়ে পাঠাবো। ইফ আই হ্যাভ 120 কিলোবাইট ডেটা, देन 20 किलोबाइट 20 किलोबाइट 20 किलोबाइट 20 किलोबाइट 20 किलोबाइट इसी के हिसाब से जाएगा। इसी को कहते हैं लोड बैलेंसिंग। हम दिखाएंगे यहाँ पर कैसे लोड बैलेंसिंग होता है, हम दिखाएंगे कि तुम देखोगे कि 512 किलोबाइट कैसे डिवाइड होकर दोनों के हिसाब से 256 करके चला जा रहा है, इसीलिए कि वो इक्वल कॉस्ट पाथ का है, वो अनइक्वल कॉस्ट पाथ रीप सपोर्ट नहीं करता है। लेकिन ज्यादा से ज्यादा 6 इक्वल कॉस्ट पाथ को ये सपोर्ट करता है। अगर 6 के जगह 7 हो जाएगा, it won't work. That is written here, where all 6 paths can be placed in the routing table and the router can load balance across them, जो अभी मैंने बताया। The default is actually 4 paths, but this can be increased up to 6. REAP will not load balance across the unequal cost paths। कि मेरे और सजीद के बीच 2 रूट है, एक के अंदर 2 राउटर 2 हॉफ काउंट है और एक रूट के अंदर 3 हॉफ काउंट है। REAP does not allow this। इक्वल कॉस्ट पाथ को REAP सपोर्ट करता है। डिफॉल्ट कितना कॉस्ट पाथ सपोर्ट करता है? 4। मैक्सिमम कितना? 6। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर और नॉट? Yes, sir. अजीत? Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. Yes. বাকিরা বুঝেছো? বিভু? হ্যাঁ স্যার। अच्छा, next is the RIP REAP version 2। REAP version 2 is a classless। Automatically it supposes the CIDR value means classless means /8 /10 /20 /12, any value it can support। REAP utilizes UDP port number 520। remember मैंने बताया था कि जब भी कोई डेटा को हमको भेजना पड़ेगा, आइदर टीसीपी पोर्ट के हिसाब से भेजना पड़ेगा या तो यूडीपी पोर्ट के थ्रू से हमको भेजना पड़ेगा। जो भी प्रोटोकॉल है, डीएनएस जब काम करता है तो यूडीपी टीसीपी को लेकर काम करता है, लेकिन डीएचसीपी जब काम करता है वो यूडीपी लेकर काम करता है। तो जो भी प्रोटोकॉल होगा ना वो आइदर टीसीपी और यूडीपी और बोथ उसके हिसाब से चलेगा। तो REAP वर्जन 2 जब काम करेगा, मतलब नॉट REAP वर्जन 2, इट इज सिंपल REAP, मतलब वर्जन 1 एंड वर्जन 2 बोथ इट यूटिलाइजेस यूडीपी। कितना पोर्ट नंबर? 520। मतलब जब REAP कोई भी डेटा को, कोई भी इंफॉर्मेशन को भेजेंगे ना अपडेट के हिसाब से या जो भी है, वो यूडीपी पोर्ट नंबर 520 के थ्रू से ही भेजेंगे। नेक्स्ट, REAP वर्जन 1 it doesn't support VLSM, variable length subnet masking। मैंने बताया था सबनेट मास्किंग 2 टाइप का होता है, एक होता है डिफॉल्ट, दूसरा होता है कस्टमाइज्ड।
डिफॉल्ट सबनेट मास्किंग क्या होता है, जो हमने बताया 255.0.0.0, 255.255.0.0, 255.255.255.0। लेकिन कस्टमाइज क्या होता है, वो दो टाइप का होता है। एक होता है फिक्स्ड लेंथ सबनेट मास्किंग और एक होता है वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्किंग। क्या होता है ये? वो फिक्स्ड लेंथ सबनेट मास्किंग का मतलब होता है, फिक्स्ड लेंथ मींस तुम्हारा सबनेट, नंबर ऑफ सबनेट फिक्स्ड, उसके अंदर नंबर ऑफ यूजर भी फिक्स्ड, सब कुछ फिक्स्ड, इसीलिए उसको कहते हैं फिक्स्ड लेंथ सबनेट मास्किंग। जैसे कि समझ लो तुमको एक नेटवर्क देकर हमने बोला कि भाई हमको 25 सब नेटवर्क चाहिए, तुम बनाओ। सपोज 172.16.0.0 नेटवर्क हम दे दिया, तुमको बोला कि भाई इस जो नेटवर्क तुमको दे दिया, तुम इसके थ्रू से 25 या 26 या 32 सब नेटवर्क को बनाओ। तो वहाँ पर जो मैथमेटिक्स है, ऑलरेडी यू हैव गॉन थ्रू इट, तुम्हारा बेसिक नेटवर्किंग में वहाँ पर एक फॉर्मूला है 2 to the power n - 2 greater than equal to s। उसके हिसाब से तुमने बोला कि सर 2 to the power n - 2 greater than 32 मतलब n का वैल्यू है 66, n का वैल्यू 6 है, तो इसी के हिसाब से मेरा 6 सब नेटवर्क बनाएंगे हम। ओके, तो हम देखेंगे कि हर एक सब नेटवर्क, ये जो 6 सब नेटवर्क हम बनाएंगे, हर एक सब नेटवर्क के अंदर फिक्स्ड नंबर ऑफ सेम नंबर यूजर आई कैन क्रिएट। मतलब अगर एक सब नेटवर्क के अंदर 50 यूजर होगा तो बाकी जो सब नेटवर्क 5 रह गया उसके अंदर भी 50 करके यूजर बना सकते हैं। तो इसीलिए इसको कहते हैं फिक्स्ड लेंथ, मतलब हर जो होगा वो सबके लिए फिक्स्ड एक ही वैल्यू होगा, तो इसीलिए इसको कहते हैं फिक्स्ड लेंथ सबनेट मास्किंग। लेकिन इसमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, এখানে কিছু প্রবলেম আছে। কি প্রবলেমটা? सपोज हम हिंदी में बाद में बोलेंगे, पहले बांग्ला में बोल देते हैं, उसके बाद हिंदी में। এগুলো কোথায় হয়? ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে এটা ইউজ করা হয় আইএসপি দের ক্ষেত্রে, বড় বড় যারা আইএসপি আছে, সার্ভিস প্রোভাইডার, তারা করে। কিরকম জিনিসটা হয়, সমস্যাটা কোথায় হয় বলছি। ধরো আমি প্রত্যেকটা সাব নেটওয়ার্ক একটা বড় এই অ্যালায়েন্স বলো বা যারা এরকম বড় বড় আইএসপি আছে, তাদের বড় বড় নেটওয়ার্ক চলছে, বিভিন্ন রিজিয়নের নেটওয়ার্কগুলো চলছে। এবার আমি বলে দিচ্ছি কি এফএলএসএম করেছি, তার মানে প্রত্যেকটা রিজিয়নে আমার ইকুয়াল নাম্বারের আমি ইউজার দিতে পারবো, ফিক্সড লেন্থ। মজাটা হচ্ছে যে দেখা যাচ্ছে যে কোথাও সেরকমভাবে কাস্টমার নেই, ওখানে আছে 10 জন, প্রত্যেকটা ইউজার হচ্ছে প্রত্যেকটা সাব নেটওয়ার্কে 30টা করে ধরো, তো আমি একটা জায়গায় 10 জনকে পাচ্ছি, বাকি 20টা আইপি অ্যাড্রেস আমার ওখানে কোনো ইউজই হচ্ছে না। কিন্তু প্যারালালি আর একটা জায়গায় দেখছি সেখানে প্রায় 40টার মতো আমার চাহিদা, কিন্তু আমার যেহেতু লিমিটেশন ওই 30টা, আমি 30টার বেশি দিতে পারছি না হোস্টকে। তাহলে দেখো একটা জায়গায় চাহিদা রয়েছে আমি দিতে পাচ্ছি না, আর একটা জায়গায় আমার অপ্রয়োজনীয় জিনিসটা নষ্ট হচ্ছে। এটা হচ্ছে ফিক্সড লেন্থের একটা प्रॉब्लम, वेस्टेज ऑफ आईपी एड्रेस। तो समझ लो कि मैं एक आईएसपी हूँ, तो मेरे बहुत रीजियन में बहुत सारे रीजियन है, उसमें हमारा नेटवर्क चल रहा है। तो अगर फिक्स लेंथ होगा तो समझ लो कि हर एक रीजियन में 30 करके यूजर हम आईपी एड्रेस डाल सकते हैं, मतलब 30 क्लाइंट को हम कनेक्शन दे सकते हैं। तुम देखोगे, अगर तुम ठीक तरह से देखोगे एफएलएसएम में, ये देखोगे कि एक जगह में उसका क्लाइंट का रिक्वायरमेंट नहीं है, वहां पर 10 क्लाइंट कनेक्शन तुम्हारा ले लिया, बाकी 20 फ्री रहेगा अनयूज्ड। और एक जगह में देखोगे कि वहां पर 40 यूजर्स तुमको कनेक्शन के लिए बोल दिया, लेकिन तुम्हारा लिमिटेशन है 30। मतलब कुछ जगह है जहां पर एफिनिटी है और कुछ जगह है जहां पर वेस्टेज हो रहा है। कुछ जगह में आईपी एड्रेस चाहिए, क्लाइंट चाह रहा है कि भाई तुम्हारा कनेक्शन दो, लेकिन मेरे फिक्स्ड आईपी एड्रेस के हिसाब से मैंने बोल दिया सॉरी मैंने दे नहीं सकता, क्योंकि मेरा लिमिटेशन 30 है, आप लोग 10 है, तो फिर 40 कहां से मिलेगा हमको। लेकिन दूसरा जगह में वहां पर 30 अलॉटेड है, 10 क्लाइंट है, बाकी 20 वहां पर अनयूज्ड हो गया। ये है प्रॉब्लम फिक्स्ड लेंथ सबनेट मास्किंग का, एफएलएसएम का।
तब नया कॉन्सेप्ट बनाया कि हम यहाँ पर तो सबनेट के हिसाब से बनाता है, लेकिन ऐसा कोई टेक्निक हम अगर डिजाइन करें कि जहां पर यूजर के हिसाब से होगा, मतलब यहाँ पर ज्यादा यूजर पार्ट ज्यादा हो गया, यहाँ पर यूजर पार्ट कम हो गया, लेकिन एफएलएसएम में क्या है, हर यूजर सेम। तब क्या आया, वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्किंग, इसीलिए इसको कहते हैं वेरिएबल लेंथ। मतलब यहाँ पर जो नंबर ऑफ यूजर्स है वो ज्यादा है, यहाँ पर कम हो गया, मतलब आईपी एड्रेस, जो वेस्टेज ऑफ आईपी एड्रेस है वो बहुत कम हो गया, वेस्टेज कम कर दिया गया। लेकिन एफएलएसएम में वेस्टेज बहुत ज्यादा होता था, क्योंकि मेरा पास आईपी एड्रेस है, मैं दे नहीं सकता, उसके पास आईपी एड्रेस चाहिए, वो ले नहीं सकता। लेकिन वेरिएबल लेंथ में कहा गया है कि भाई तुम्हारा कितना चाहिए, बोला कि मेरे पास तो 50 है, वहां पर बनाया 50 यूजर के हिसाब से। तुम्हारा पास कितना है, बोला मेरे पास 10 या 15, उसके हिसाब से बनाया जाएगा। इसमें क्या हुआ, ये आईपी एड्रेस का जो वेस्टेज होता है ये कम हो गया, कम हो गया, मतलब बहुत मिनिमाइज हो गया। तो ये जो बिग जो आईएसपी है ना, अलायंस है, जो भी है, ये सब लोग वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्किंग यूज करता है। इसीलिए ये लोग आईपी एड्रेस को, वेस्टेज ऑफ आईपी एड्रेस को रोक दिया कि भाई हम लोग वीएलएसएम यूज करेंगे, नॉट एफएलएसएम। एम आई क्लियर और नॉट? हाँ सर। सजीद और अजीत क्या बात है, बोलो। यस सर, यस। ठीक है, ओके। तो ये है वीएलएसएम। रीव वर्जन 2, रीव वर्जन 1 वीएलएसएम को सपोर्ट नहीं करता है, वो एफएलएसएम करता है, लेकिन रीव वर्जन 2 वीएलएसएम को सपोर्ट करता है। नेक्स्ट इज द रीव वर्जन 2 सपोर्ट्स ऑथेंटिकेशन। जो है वो ऑथेंटिकेशन होता है क्या, MD5, मैसेज डाइजेस्ट 5। ये इंक्रिप्शन एक स्टैंडर्ड है। जब भी रीव वर्जन 2 कम्युनिकेट करता है दूसरा राउटर के साथ, तो वो जो डेटा वहां से भेजेंगे ना, वो ऑथेंटिकेटेड डेटा होगा, वो MD5 के हिसाब से एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में वो डेटा जाएगा। दैट इज व्हाई रीव वर्जन 2 सपोर्ट्स द MD5 ऑथेंटिकेशन, इसीलिए कहते हैं। नेक्स्ट, रीव वर्जन 2 सपोर्ट्स 25 रूट्स पर मैसेज, 24 फॉर ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन 25 रूट्स भेज सकते हैं रीव, जब कोई भी मैसेज भेजेंगे उसके अंदर 25 रूट, 24 फॉर ऑथेंटिकेशन। ये जी 24 जो रूट जाएगा वो ऑथेंटिकेशन के लिए वो साथ में भेजेंगे। भाई ये मेरे पास के तुम्हारे पास जा रहा है, तुम मेरा ऑथेंटिकेटेड फ्रेंड हो, मैं भी तुम्हारा ऑथेंटिकेटेड फ्रेंड हो, तुम्हारा और मेरा बीच में कोई अनऑथेंटिकेटेड यूजर के पास ये मैसेज नहीं जाएगा। That is why the point is Reef version 2 supports 25 routes per message, 24 for authentication. Next is the Reef version 2 supports the route tagging. Route tagging क्या होता है, रूट को टैग करना, रूट को टैग करना, रूट टैगिंग, जो कि Reef version 1 में ये सपोर्ट नहीं होता है। That is called the route tagging. ये जो टैग मार्किंग है ना, ये टैगिंग होता है ना, ये जो टैगिंग बोले, তোমার ওটাকে কি যেন বলে, দাঁড়াও বলছি। ট্যাগ করি না আমরা, ধরো কোন একটা রুটকে ফিক্স আপ করা, যে সাপোজ ধরো আমি এটা পাতা, সাপোজ আমি একটা বই পড়ছি, আমি তখন কি করলাম, একটা বইয়ের পাতা বন্ধ করলাম, আমি একটা কাগজ দিয়ে আটকে দিয়ে ট্যাগ করে গেলাম যে আমি কত দূর অবধি পড়েছি। रीव वर्जन 2 सपोर्ट्स द रूट टैगिंग, मतलब पर्टिकुलर कोई भी एक रूट को टैग करना, that is possible in route tagging. Okay, so these are the features. So remember, if you are asked maybe at the time of viva, examination or the interview, the features of explain the features of Reef version 1, just choose the version 1 features from here. If you are asked please explain the features of Reef version 2, you choose the Reef version 2 features from here. But if you are asked explain the features of Reef,
then it includes rev version 1 and rev version 2 as well. যদি তোমায় বলে ভার্সন 1 এর ফিচার কি, এই যে ফিচারগুলো আছে এখান থেকে ভার্সন 1 এর ফিচারগুলো নিয়ে নেবে। যদি বলে ভার্সন 2 এর ফিচার কি, ভার্সন 2 এর ফিচারগুলো নিয়ে নেবে। যদি বলে রিপের ফিচার কি, তাহলে ভার্সন 1 ভার্সন 2 সবকটাই দিয়ে দেবে, এই ফিচারগুলো এখানে ইনক্লুড করে দেবে। ঠিক আছে? ইজ ইট ক্লিয়ার অর নট? Is it clear or not? হ্যাঁ স্যার। Next, the vital point is the reap timers. That is very vital. কিছু টাইমার আমার এখানে ইউজ করা হয় রিপ যখন कम्युनिकेट करे। जब रीप कम्युनिकेट करता है दूसरा राउटर के साथ रीप के थ्रू से, तो यहाँ पर 4 टाइमर यहाँ पर इस्तेमाल होता है। 4 टाइमर उसका काम है, 4 टाइमर का काम होता है। फर्स्ट टाइमर है अपडेट टाइमर। अपडेट टाइमर मतलब जो अपडेट भेजेंगे, एक रीप दूसरा रीप को, एक रीप राउटर दूसरे रीप राउटर को जब डेटा भेजेंगे, अपडेट भेजेंगे, क्या बोले डिफॉल्ट इज 30 सेकेंड। डिफॉल्ट 30 सेकेंड मीन्स 30 सेकेंड्स इंटरवल में वो अपडेट भेजेंगे। वो चाहे अपडेट तुम्हारे पास हो चाहे अपडेट तुम्हारे पास नहीं हो, वो सेम इंफॉर्मेशन तुमको भेजेंगे। इट इंडिकेट्स हाउ ऑफन द राउटर विल सेंड आउट ए राउटिंग टेबल अपडेट। मतलब मेरे पास कोई किसी के पास कोई अपडेट नहीं है, लेकिन फिर भी 30 सेकेंड इंटरवल में एक राउटर दूसरा रीप राउटर को उसका राउटिंग टेबल वो भेज देंगे। अगर उसके अंदर कोई चेंज होगा वो अपडेट हो जाएगा, कोई चेंज नहीं होगा तो फिर से उसके ऊपर वो मर्ज हो जाएगा सेम इंफॉर्मेशन। अगर कोई भी चेंज नहीं होगा तो क्या होगा, तुम्हारे पास भी चेंज नहीं होगा, मेरे पास भी चेंज नहीं होगा, तो क्या होगा, तो तुम भेज दिया मेरे को वो पुराना टेबल, मैंने अपडेट कर लिया, मतलब जो तुम्हारे पास है वो भी मेरे पास है, कोई भी चेंज तो नहीं है। कोई चेंज नहीं होने के बावजूद भी ये राउटिंग टेबल ये सबको 30 सेकेंड इंटरवल में भेजेंगे। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अपडेट टाइमर। डिफॉल्ट 30 सेकेंड्स है, तुम इसको कम कर सकते हो, इसको ज्यादा कर सकते हो, दैट इज फुल्ली डिपेंड्स ऑन द नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, मतलब तुम्हारे ऊपर। तुम जाके वहां पर टाइमर को ये जो डिफॉल्ट सेकेंड्स तुम ज्यादा कर सकते हो, कम कर सकते हो, लेकिन कम करने का एक प्रॉब्लम होता है, जब तुम ये कम कर दिया तो ऑटोमेटिकली 10 सेकेंड या 20 सेकेंड कर दिया तो 20 सेकेंड इंटरवल में हर एक राउटर को पूरा टेबल भेजेंगे, मतलब कॉन्जेशन अराइज हो जाएगा, कॉन्जेशन अराइज हो जाएगा। तब तुमने बोल सकते हो कि सर तो हमने थोड़ा बहुत 30 की जगह 60 सेकेंड हम कर देंगे, मतलब 1 मिनट। यहाँ पर भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लेम है, যদি তুমি বাড়িয়ে দাও তাহলে একটু সমস্যা আছে। অনেক সময় হয় যে কোন একটা লিংক ডাউন হয়ে গেছে, তাহলে তার আপডেট 1 মিনিট অবধি ধরতে পারবে না, সেই আপডেটটা যাবে না। समझ लो कोई भी लिंक एक डाउन हो गया, तुम यहाँ पर कर दिया 1 मिनट, 30 सेकेंड की जगह 60 सेकेंड कर दिया, तो 60 सेकेंड बाद जो कोई भी इंफॉर्मेशन जाएगा तो इंफॉर्मेशन को उसके अंदर नहीं रहेगा कि वो डाउन हो गया। तो इसीलिए बेहतर है 30 सेकेंड ही रखो। ये डिपेंड करता है तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहता है और तुम क्या चाहते हो एडमिनिस्ट्रेटर हिसाब से। लेकिन 30 सेकेंड्स जो है ये तुमने बोल सकते हो कि सर ये 30 सेकेंड्स क्यों, 40 सेकेंड्स की डिफॉल्ट क्यों नहीं, लेकिन 30 सेकेंड्स में एवरेज बैंडविड्थ कंजम्पशन होता है, सब कुछ नॉर्मल तौर से होता है, इसीलिए 30 सेकेंड्स डिफॉल्ट कर दिया गया। 40 करके 20 करके देख लिया कि कंजम्पशन किस में, 30 में जाके देखा गया कि भाई यहाँ पर हाँ सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, तो ये डिफॉल्ट 30 सेकेंड्स ही रखो। अगर जरूरत पड़े तुम 20 करो, अगर जरूरत पड़े तुम 40 करो, दैट फुल्ली डिपेंड्स ऑन यू। एम आई क्लियर? अजीत, शाहिद, समझ में आया? यस सर। ओके, नेक्स्ट इज द इनवैलिड टाइमर। डिफॉल्ट है 180 सेकेंड, मतलब 3 मिनट, 3 मिनट्स। इनवैलिड टाइमर मतलब
It indicates how long a route will remain in a routing table before being marked as invalid. समझ लो अजित एक राउटर है, अजित के पास से मेरे पास कोई अपडेट नहीं आ रहा है। कितना समय तक हमने देखेंगे, हम देखेंगे 180 सेकेंड्स, मतलब 3 मिनट, 60 सेकेंड 60 सेकेंड 60 सेकेंड हम देखेंगे कि नहीं विद इन 180 मिनट अजित के पास से तो कोई इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं है। तब जाके हम डिक्लेयर करेंगे कि ये रूट इनवैलिड है राउटिंग टेबल में, क्योंकि इस रूट से मेरे पास कोई भी इंफॉर्मेशन अपडेट नहीं आ रहा है। हाउ लॉन्ग टाइम? 3 मिनट्स। 3 मिनट्स क्रॉस कर दिया, इसीलिए भाई हमने मार्क कर दिया कि ये रूट इनवैलिड रूट है। लेकिन इनवैलिड है, लेकिन फिर भी ये रूट राउटिंग टेबल में मेंशन रहेगा। किसके हिसाब से? इनवैलिड रूट के हिसाब से, लेकिन राउटिंग टेबल में उसका इंफॉर्मेशन रहेगा। মানে আমি 3 মিনিট অপেক্ষা করে দেখবো যে এই রাউটিং টেবল থেকে অজিত নামে যে রাউটার আছে, অজিত রাউটার থেকে আমার কাছে এই ইনফরমেশনটা আসছে কিনা। কতক্ষণ ধরে দেখবো আমি যে আসছে না? 180 সেকেন্ডস, মানে 3 মিনিট আমি দেখবো। দেখার পর আমি দেখবো 3 মিনিটের মধ্যে তো কোনো ইনফরমেশন এলো না, তাহলে ভাই অজিত ইউ আর ইনভ্যালিড রুট বলে আমি রাউটিং টেবলে মেনশন করে দেবো। কিন্তু রাউটিং টেবল থেকে উড়িয়ে দিচ্ছি না, আমার এন্ট্রি কিন্তু থাকছে, কিন্তু আমি শুধু বলে দিচ্ছি যে এই রুটটা ইনভ্যালিড। This is the case. If no new updates are heard about this route, এখানে বলে দিয়েছে যে it indicates how long a route will remain in a routing table before being marked as invalid if no new update are heard about this route. कोई भी अपडेट 180 seconds तक मेरे पास नहीं आया। After 180 seconds, I will mark this route as invalid, but I will retain it in my routing table. The invalid timer will be reset if an update is received for that particular route before being timer expires. जब क्या हुआ 180 seconds कंप्लीट हो गया, हमने बोल दिया कि ये रूट इनवैलिड है, लेकिन अचानक अजित के पास से मेरे पास अपडेट चलाया। देन एंड देयर आई विल रीसेट दिस अपडेट टाइमर, फिर से हम 0 से 180 सेकेंड हम देखेंगे। अरे ये रूट तो बंद था, अब तो ये रूट के मेरे पास अपडेट चलाया, चलो भाई ये रूट नॉट इनवैलिड, इसको चालू कर दो। इसीलिए इसको कहता है इनवैलिड टाइमर, जो रूट को इनवैलिड डिक्लेयर करता है और तुरंत इसको फिर से रीशेड्यूल कर देते हैं कि नहीं, इसके थ्रू से 180 सेकेंड हो गया, अपडेट नहीं आया, लेकिन आफ्टर 180 सेकेंड ये अपडेट भेज दिया, तो इसको ये इनवैलिड रूट नहीं भाई, इसको टाइमर फिर से चालू कर दो। नेक्स्ट इज द होल्ड डाउन टाइमर। ये भी 180 सेकेंड्स है डिफॉल्ट। होल्ड डाउन टाइमर, इट इंडिकेट्स हाउ लॉन्ग RIP will suppress a route that it has placed in a hold down state. RIP will not accept any new updates for routes in a hold down state, and the hold down timer expires. A route will enter a hold down state for one of the 3 reasons. ये पहले देख लो, ये 3 reasons क्या है, 3 कारण की? प्रथम, the invalid timer has expired. Invalid timer means 180 seconds expire. After 180 seconds कोई भी राउटर के पर्टिकुलर एक रूट का इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं आ रहा है, तो इसको हम होल्ड डाउन स्टेट में भेज देंगे। ये एक हो सकता है। दूसरा है, an update has been received from another router marking that route with a metric of 16, जो डीप में होता है। मैंने अभी तक क्या बोला कि अगर मेरा और अजित के बीच 15 राउटर क्रॉस करना पड़ेगा तो ठीक है भाई, लेकिन वहां पर अगर 16 हो जाएगा, उस रूट को हम कह देंगे इनवैलिड रूट, क्योंकि रिप का एक लिमिटेशन है, वो सिर्फ 15 रूट के ज्यादा वो नहीं कर डेटा को भेज सकता है, अपडेट को भेज नहीं सकेगा। तो ऐसा होता है
कि अपडेट एक दूसरा राउटर के पास मेरे पास आया कि भाई वो रूट इनवैलिड हो गया। क्यों इनवैलिड हो गया? क्योंकि वहां पर हॉफ काउंट 15 के ज्यादा हो गया, इसको एंट्री कर दो। तो उस वो पर्टिकुलर रूट को हम होल्ड डाउन। हाँ बोलो बोलो, কেউ কিছু বলছো? थोड़ा हाँ जोर से बोले सर, आवाज कटकट आ रहा है। के कौन? मेरा आवाज? एक मिनट। হ্যাঁ স্যার আমাদের ঠিক আছে। তাহলে ওর মধ্যে কোনো একটা প্রবলেম হচ্ছে। থার্ড পয়েন্ট কি বলছে? বলছে an update has been received from another router marking the route with a higher metric than what is currently in the routing table। ব্যাপারটা কি? আমার কাছে যে আপডেটটা তোমার রুটের আছে তার যা মেট্রিক ভ্যালু আমি দেখছি সেই রুটটারই হায়ার মেট্রিক ভ্যালু আমি রিসিভ করছি। সঙ্গে সঙ্গে তাকে আমি বলবো তুমি होल्ड डाउन स्टेटे चले जाओ, তুমি तो सेम मेट्रिक वैल्यू पे नहीं। अगर मेरे पास अजीत का एक राउटर है या सजीत का एक राउटर है, मेरे पास जो रूट आया उसके आउट अपडेट आया, तो उससे हमको पता चलता है कि भाई सजीत तुम्हारा जो मेट्रिक वैल्यू था और पहले जो मेट्रिक वैल्यू था, अब तो तुम जो भेज रहे हो तुम्हारा जो अपडेट आ रहा है वो तो ज्यादा है, तो भाई चलो तुम होल्ड डाउन स्टेट में चला जाओ। क्योंकि तुम्हारा जो एंट्री है जितना कम मेट्रिक वैल्यू होगा उसको हम एक्सेप्ट करेंगे, ज्यादा को क्यों एक्सेप्ट करेंगे। तो इसीलिए तुम होल्ड डाउन पर्टिकुलर रूट जो रूट है सजीत का, उस रूट को हम होल्ड डाउन स्टेट में भेज दिया कि भाई ये तीनों का रीजन है, तीनों या तीनों का दो या तीनों का एक भी रीजन होगा तो हम उसको होल्ड डाउन में भेज देंगे कि भाई तुम थोड़ा रुक जाओ, बाहर जाके वेट करो, क्योंकि तुम्हारा कुछ गड़बड़ है अपडेट में। तो क्या गड़बड़ है? बोला पहला ये हो सकता है कि तुम्हारा टाइम तो इनवैलिड टाइमर हो गया, तुम्हारा रूट के जो कोई इन्फॉर्मेशन 180 सेकंड के अंदर मेरे पास नहीं हुआ, तो तुम होल्ड डाउन में हो जाओ, तुम रुको, तुम्हारा इन्फॉर्मेशन फिर से अपडेट आएगा, फिर हम तुमको अप करेंगे। दूसरा क्या हो सकता है? तो बोला भाई तुम्हारा जो रूट है सजीद, तुमने जो रूट भेजा हमको, तो पहले जो अपडेट था उसके हिसाब से तुम्हारा मेट्रिक वैल्यू कम था, तो अब तो 15 के ज्यादा हो गया, मतलब अनरीचेबल, तुम होल्ड डाउन स्टेट में चले जाओ। क्योंकि अनरीचेबल रूट तो मैं एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बिकॉज आई एम रिप राउटर। तीसरा क्या हो सकता है? कोई भी अपडेट, दूसरा समझ लो अजीत का एक अजीत राउटर है, अजीत के पास से मेरे पास आया, वो राउटर क्या आया, हमने बोला अरे अजीत तुम्हारे पास से कुछ देर पहले अपडेट आया, तुम्हारा जो मेट्रिक वैल्यू था, तो तुम आज आप जो अपडेट भेज रहे हो उसमें तो ज्यादा मेट्रिक वैल्यू है, ये तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जितना मेट्रिक वैल्यू कम होगा हम उसको लेंगे, जितना हॉप काउंट कम होगा हम उसको लेंगे। तो तुम भी सॉरी तो भी अप डाउन स्टेट में होल्ड डाउन स्टेट में चला जाओ। तुम्हारा जब मेट्रिक वैल्यू कम हो जाएगा तब तुम मेरे साथ बात करना। सजीद तुम्हारा जब राउटर मेट्रिक नंबर ऑफ हॉफ काउंट कम हो जाएगा तब तुम मेरे साथ बात कर लेना, तुम्हारा अब रूट अनरीचेबल है। तो इसीलिए कहते हैं, इसको कहते हैं होल्ड डाउन टाइमर। होल्ड डाउन टाइमर कम कब करता है? सॉरी, इनवैलिड टाइमर के बाद। मैंने फास्ट डिक्लेयर कर दिया कि ये इनवैलिड है, हो गया। इनवैलिड होने के बाद फिर 180 सेकेंड्स हम होल्ड डाउन स्टेट में उसको भेज देंगे। আমি প্রথমে এভরি 30 সেকেন্ডস ইন্টারভ্যালে আমি अपडेट पाচ্ছি, नो प्रॉब्लम। इन एवरी 30 सेकेंड्स इंटरवल में मेरे पास अपडेट आ रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम, अपडेट तो सभी के पास से आ रहा है। लेकिन कोई भी रूट में प्रॉब्लम तब शुरू होगा कि अगर कोई भी रूट 180 सेकेंड्स तक मेरे पास कोई अपडेट नहीं भेजा, तो 180 सेकेंड जब क्रॉस करेगा तो उसको हम इनवैलिड कर देंगे कि ये रूट इनवैलिड है, लेकिन फिर भी राउटिंग टेबल में उसका एंट्री रहेगा। और अगर हो सकता है कि अचानक उसका अपडेट चलाया तो फिर से हम ये जो टाइमर है उस टाइमर को ऑन कर देंगे। क्या तुम्हारा अब 180 सेकंड तक तुम्हारा अपडेट बंद था, तो फिर से चलाया, भाई चलो तुम चालू हो जाओ। और 3 क्या हो सकता है? 80 सेकेंड्स तक कोई भी अपडेट तुम्हारे पास से नहीं आया, तब हम क्या करेंगे? तब बोल दिया भाई
180 सेकंड्स के तक तुम्हारा नहीं आया, चलो तुम होल्ड डाउन स्टेट में चले जाओ। कितना देर तक हम होल्ड डाउन स्टेट में रहेंगे? 180 सेकंड्स। वहां पर भी 180 सेकंड्स हमको रुकना पड़ेगा होल्ड डाउन स्टेट में। मतलब राउटिंग टेबल विल शो यू दैट दिस रूट इज इनवैलिड रूट। हाउ लॉन्ग टाइम? 180 सेकंड्स तक। क्या क्या वजह हो सकता है कि हम इसको होल्ड डाउन स्टेट में भेजेंगे? पहला, ये इनवैलिड टाइमर एक्सपायर कर दिया, जो पहले हमने बताया। 180 सेकंड इनवैलिड जो टाइमर है जो रूट के अंदर, वो एक्सपायर कर दिया गया, तो होल्ड डाउन स्टेट में चला गया। दूसरा ये हो सकता है कि भाई तुम्हारा जो तुमको जो रूट का इंफॉर्मेशन मेरे पास अपडेट भेज दिया, उसका मैट्रिक वैल्यू तब जा था, अब तो 3 तो नहीं है, वो तो 16 हो गया, मतलब अनरीचेबल रूट। ये इसीलिए होल्ड डाउन स्टेट में चला जा सकता है। और क्या हो सकता है? कोई भी राउटर के पास से मेरे पास अपडेट आया, तो वो अपडेट क्या आया कि भाई मेरे पास एक रूट का इंफॉर्मेशन है, जो रूट जो मैट्रिक वैल्यू है वो अब ज़्यादा है, लेकिन पहले तो वो कम था। तब हमने बोल दिया कि भाई तुम्हारा ज़्यादा मैट्रिक वैल्यू है, जब तुम्हारा मैट्रिक वैल्यू कम हो जाएगा तब तुम मेरे साथ बात कर लेना। तो ये तीनों रीजंस है। ये तीनों रीजन के अंदर 2 या 1 जो भी है सेटिस्फाई करेगा, उसका रूट होल्ड डाउन स्टेट में चला जाएगा। और होल्ड डाउन टाइमर वो 180 सेकेंड्स तक उसको होल्ड करके रखेगा। मतलब पहले 30 सेकेंड्स, उसके बाद 180 सेकेंड्स, उसके बाद फिर 180 सेकेंड्स। नेक्स्ट इज द फ्लैश टाइमर। व्हाट इज फ्लैश टाइमर? इसका डिफॉल्ट वैल्यू है 240 सेकेंड्स। इट इंडिकेट्स हाउ लॉन्ग ए रूट कैन रिमेन इन ए राउटिंग टेबल बिफोर बीइंग फ्लश्ड। कितना देर तक एक राउटर का इंफॉर्मेशन यहाँ पर रहेगा जो इनवैलिड होगा, कितना देर तक हम राउटिंग टेबल में उसको शो करेंगे, उसके बाद पूरा राउटिंग टेबल से उसको हटा देंगे, हम पूरा हटा देंगे, मतलब उसका कोई नाम ही नहीं रहेगा। ये है 240 seconds. That is why it is called, it indicates how long a route can remain in a routing table before being flushed. If no new updates are being heard about this route. हाँ, 240 seconds के अंदर हम बाहर कर देंगे, भाई तुम्हारा कोई एंट्री अब तक था, लेकिन अब तुम्हारे साथ मेरा कोई रिलेशन नहीं है, तुम बाहर चले जाओ राउटिंग टेबल के। लेकिन अचानक उसका अपडेट चलाएगा तो फिर से चालू हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। तो क्या कहा? द फ्लैश टाइमर रन्स कॉन्करेंटली विद द इनवैलिड टाइमर। इनवैलिड टाइमर भी चलेगा, फ्लैश टाइमर भी पैरेलली चलेगा, and thus will flush out a route 60 seconds after it has been marked invalid. एक साथ चलेगा तो वो 60 सेकंड इंटरवल में जाके उसको कह देगा कि भाई तुम्हारा बहुत हो गया, तुम्हारा कोई अपडेट मेरे पास नहीं आया, चलो तुम बाहर चले जाओ, जाके उस रूट को हम इनवैलिड कर देंगे। That is the timers. These are very important. These are very important because frequently this question comes in interview, that what are the timers of RIP? টাইমার গুলো কি কি, সেই টাইমার গুলোর কাজ কি বলো, সেইগুলো কিন্তু ভীষণ ভাবে আসে। সো গো থ্রু ইট। ইজ ইট ক্লিয়ার? बताओ। Yes, sir. अच्छा, नेक्स्ट इज द कन्वर्जेंस। जो मैंने बताया कि भाई सब राउटर के पास सेम रूट सबके पास होगा, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड कन्वर्जेंस। This term refers to the time to take for all of the routers to understand the current topology of the network. मतलब मेरे पास जितना भी रूट होगा तुम्हारे पास भी उतना भी रूट होगा, सबके पास सब कंप्लीट रूट होगा। इसीलिए तब जाके कहता है कि भाई ये कन्वर्जेंस लिमिट में चला गया, मतलब सबके पास सब इंफॉर्मेशन सही तरह से है। और ये कहता है काउंट टू इंफिनिटी, मैक्सिमम हॉप काउंट रिप में अगर 15 राउटर्स से ज्यादा हो जाएगा तो उसको कहते हैं काउंट टू इन्फिनिटी। मतलब मेरे बस के नहीं है, 15 रूट क्रॉस कर गया मतलब ये अनरीचेबल रूट हो जाएगा, इसको कहते हैं काउंट टू इन्फिनिटी। व्हेन ए राउटिंग लूप ऑकर्स एंड ए কেন স্যার? बोल এই তো সেটাই বলছে এটা। व्हेन ए राउटिंग लूप ऑकर्स and a packet or packets are caught in the loop, then continuously circle around the loop, wasting the bandwidth on the segments and CPU cycles
on the routers that are processing these packets. So to prevent packets from circling around the loop forever, distance vector routing protocols typically place a hop count limit as to part. মানে ব্যাপারটা হচ্ছে আমি বলছি, ধরো একই ইনফরমেশন रिपीटेडली তোমার কাছে কন্টিনিউয়াস एक इन्फॉर्मेशन घूरे घूरे আসছে, सेम इन्फॉर्मेशन तुमने जो भेज दिया वो सेम इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास बार बार रिपीटेडली वो सेम आ रहा है, मतलब वहां पर एक लूप जनरेट हो गया, तुम उस लूप के बाहर किसी भी हिसाब से नहीं आ रहा है। तो तब क्या किया गया कि भाई मैंने जो पैकेट भेज दिया वो पैकेट मेरे पास सेम पैकेट फिर से आ गया, तब जाके ये इसको कहते हैं हम लोग के फोर्सफुली हॉफ काउंट को ज्यादा कर दिया, 16 कर दिया। जब ये हॉफ काउंट 16 कर दिया तब जाके क्या हुआ, वो अनरीचेबल रूट हो जाएगा, मतलब वहां से पैकेट जाके फिर यहाँ पर नहीं आएगा। इट इज ए लूप प्रिवेंटिव प्रोसेस, लूप को हम क्लोज कर दिया। तुम एक राउटर हो, मेरे हिसाब से तुम्हारे पास भेज दिया हमने भाई डेटा, वो तो तुम फिर से सेम डेटा मेरे को भेज रहे हो, तो क्या हुआ, कंटिन्यूअसली सेम डेटा आई एम रिसीविंग फ्रॉम यू, सो इट क्रिएट्स ए लूप। तो कंटिन्यूअसली अगर कंटिन्यूअस डेटा जाएगा, एक ही डेटा बार बार रिपीटेडली आएगा, तो बैंडविड्थ कंजम्पशन तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, सीपीयू साइकिल बहुत ज्यादा यूज हो जाएगा, कंजेशन होगा। तब जाके बोला कि ये जो लूपिंग कैसे हम इसको बंद कर सकते हैं। बोला एक काम करो, ये जो दूसरा राउटर है वो दूसरा राउटर को हॉफ काउंट ज्यादा कर दो, और कितना 16 कर दो। इसमें क्या हो गया, जब भी मेरा डेटा वहां पर गया तो वहां पर 16 होना जाने के बाद वो क्या हुआ, वो इनवैलिड हो जाएगा, रूट इनवैलिड, वो फिर से मेरे पास ये रूट नहीं भेज सकेंगे, मतलब it may prevent the looping. So that is why it is called count to infinity. Unreachable. Count to infinity means it is unreachable. Infinite हो गया, तो इसीलिए मैंने भेज नहीं सकेंगे, इसलिए फिर से मेरे पास ये इंफॉर्मेशन नहीं आएगा, तो लूप ब्लॉक हो गया। That is why it is written. To prevent packets from circling around the loop forever, the distance vector protocols typically place a hop count limit as to how far a packet legally allowed to travel. Hop count ज़्यादा कर दिया। As a packet travels from router to router, a router keeps track of hops in the TTL field, time to live, in the IP datagram header. For each hop, a packet goes through the packet goes through, and the packet's TTL field is decremented by 1. एक करके काम होता है। If this value reaches 0, the packet is dropped by the router that determine the value from 1 to 0. That is the process. उसके अंदर ये टोटली कैसे ये होता है, हमने तो बाहर से बोल दिया कि भाई हम जाके राउटर का हॉफ काउंट 15 कर दिया, तो बोला ठीक है सर, आप तो 16 कर दिया, अनरीचेबल इसीलिए पैकेट हम मेरे पास नहीं आया। लेकिन एक्चुअली अंदर में क्या होता है, क्यों ये पैकेट ड्रॉप हो जाता है, कि ये लूप, ये दैट इज द प्रोसेस। ये कैसे ये करता है कि एज ए पैकेट ट्रेवल्स फ्रॉम राउटर टू राउटर, मैंने एक पैकेट को भेज दिया तुम्हारे पास, ए राउटर कीप ट्रैक ऑफ द हॉप्स इन द टीटीएल फील्ड, मेरे पास है, जब ये पैकेट मेरे पास से वहां पर गया तो कितना राउटर क्रॉस करके इसका ये क्या होता है, उसका वैल्यू फोर्सफुली 1 से 0 हो जाता है, वहां पर एक फील्ड वैल्यू होता है, उस वैल्यू को 1 से 0 कर दिया गया। तुम जब यहाँ पर 15 से 16 कर दिया, वो फील्ड वैल्यू फोर्सफुली 1 to 0 हो गया। जब 0 हो गया उसको पता चलेगा कि भाई इस पैकेट को ड्रॉप कर दो, मतलब लूपिंग ब्लॉक हो गया, वो पैकेट फिर से नहीं आएगा। पैकेट अगर ड्रॉप ही हो जाएगा तो पैकेट मेरे पास कैसे आएगा, तो इट कैन ब्लॉक दिस पैकेट, सो सॉरी आई मीन इट कैन ब्लॉक दिस लूपिंग। इज इट क्लियर? একটু পড়বে তাহলে ব্যাপারটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে, थोड़ा बहुत पढ़ लेना, उसके बाद हमने जो बताया वो रिकॉर्डिंग भी हम भेज देंगे, तो उसके मिला के पढ़ लेना तो थोड़ा बहुत क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी नहीं क्लियर होगा तो यू टॉक टू मी, यू आस्क मी द क्वेश्चन कि सर ये क्लियर नहीं हुआ या जो भी है। ओके ओके सर। স্যার ওই কাউন্ট টু ইনফিনিটি এটা কি স্যার পসিবল, মানে এখন হয়? রিপ তো এখন ইউজ করা হয় না,
তোমার এখন সবই হয় ওএসপিএফ। ওএসপিএফ এই সমস্যাগুলো নেই, এখন ওএসপিএফ সব থেকে বেশি ইউজ হয়। রিপ বেসিক্যালি কি, রিপ একটু ছোট নেটওয়ার্কে ইউজ করা হয়, খুব বড় নেটওয়ার্ক হলে তো হবে না, কারণ এখানে তো লিমিটই বলেছে 15টার বেশি আমি রাউটার দিতে পারবো না, হাফ কাউন্ট হবে না। হ্যাঁ স্যার। তাহলে ন্যাচারালি তো বিরাট নেটওয়ার্ক হবে না, কিন্তু বিরাট নেটওয়ার্ক হয়ে গেলে তো রিপ চলবেই না, সেখানে আমাকে ওএসপিএফ বা ইআইজিআরপি কনসিডার করতে হবে। বাট ওএসপিএফ ইজ প্রেফার্ড, মাচ মোর প্রেফার্ড দ্যান ইআইজিআরপি। ওকে ওকে স্যার। আচ্ছা, আমি এই অবধি কাউন্ট টু ইনফিনিটি করালাম। নেক্সট দিন, কালকে তো তোমাদের পরীক্ষা আছে, কালকে 10:40 থেকে বোধহয় পরীক্ষাটা আছে, ঠিক আছে? তো নেক্সট দিন আমি আপনি এক্সাম নেবেন? হ্যাঁ, ওই কোশ্চেন আমি এতে দিয়ে দেবো, তোমরা দেখতে পাবে। হ্যাঁ স্যার। স্যার কি টাইপের কোশ্চেন হবে একটু বলুন। এটা একটু ছোট ছোট, এখানে কিন্তু এমসিকিউ হবে না, এটা 2-3 লাইন করে লিখতে হবে। মানে স্যার আপনি যে নোটস গুলো দিয়েছেন ওর মধ্যে থেকে থাকবে? কোনো অসুবিধা হবে না বাবা, আমি বলে দিচ্ছি তো, কোনো প্রবলেম হবে না, আই এম টেলিং ইউ। এগুলো ডেসক্রিপটিভ টাইপ হবে, একটু ডেসক্রিপটিভ মানে ছোট পার্ট হবে আর কি, মানে এমসিকিউ হবে না এটা। হ্যাঁ জানি।